में जहां उनकी सोलफुल परफॉर्मेंसेस के जरिए वो देश को ट्रिब्यूट देंगे. We came to know about this through some of the members of DPIF. We met them, we spoke about it, and that's how we associated with this festival. Thank you, sir. Thank you, sir. Secretary General's advocate for sustainable development goals. Also, the climate champion Dia Mirza is a respected, credible voice speaking up for environmental and wildlife conservation in the country and a torchbearer of eco-sensitivity. Also an ambassador of the Swachh Bharat Mission, Swachh Saathi program. And itni sari baatein, my God, Dia, I did not know you did so many things. But thank you so much, everybody. Thank you for having this wonderful discussion. Thank you. Along with other esteemed ministers for the ceremony. This year, we are honoured to receive an appreciation letter from the Honourable Education Minister of India for Dada Saheb Phalke International Film Festival Awards 2024. This recognition highlights our commitment to educating people about the legacy of Dada Saheb Phalke ji. As we continue to follow in his footsteps, this acknowledgement fuels our passion for promoting and celebrating excellence in our association with Dada Saheb Phalke Award made sense because we are an indigenous community which is very authentic and trustworthy. I mean, these are awards which are one of the awards that I feel are very, very authentic, very, very trustworthy. It is given to people who have done some good work in the field of cinema, and that's what we also stand for, right? We actually support a lot of Indian artisans work tirelessly to kind of push our country forward. And that's what we kind of support, and that's why we are very proud and happy to associate with this award. Thank you very much. Good to see you. Yeah, good to see you. सामने ऐसे. नुसरत मैम क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले दादा साहब फाल्के का नाम जुड़ा है अवार्ड के साथ, बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, क्या कहना चाहेंगे इस अवार्ड शो के बारे में? उनके आज 12 साल हुए हैं और 8 साल से उनका अवार्ड फंक्शन चल रहा है. आई जस्ट फील वेरी ऑनर्ड दैट आई हैव कम ऑन अ स्टेज लाइक दिस टू अनवेल देयर. आप सबने देखा डिजिटल पोस्टर उनका? सो इट्स अ वेरी हाई एनिमेटेड थिंग एंड इट एक्चुअली शोज द अवार्ड गो थ्रू ऑल द स्ट्रीट्स ऑफ बॉम्बे एंड एवरीवेयर एंड इट जस्ट it's so nice that we have legacy meeting culture now and also technology, जहाँ वो पूरा एक पोस्टर इतना interesting, इतना interactive बना दिया है that I'm very glad. They're doing a very good job and I wish everybody this year who's getting the award all the best and big congratulations and I'm happy to be here. 2023 में बहुत सारी अच्छी फिल्में हैं. आपकी फेवरेट फिल्म कौन सी थी 2023? Oh my God. 3 Idiots. अरे इडियट तो नहीं हूँ मैं. I think I'll say Animal. मुझे Animal बहुत पसंद है. मैं रणवीर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और रणवीर की दोनों पिक्चरें आई हैं इसी साल में. It's just a treat to watch him. I think for me, I absolutely love watching him. So I'll say Animal. 2024 में कौन से अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं अगर आप शेयर करना चाहें? मेरे छोरी 2 है, आपके पड़ोस में वो एक और है, उसका पता नहीं कब रिलीज इस साल होगा. सो लेट्स सी. नुसरत, आपने ऑब्वियसली कहा कि आपको एनिमल पसंद आई, दैट्स अ पर्सनल चॉइस. ओवरली हर एक फिल्म उसके अलग अलग ओपिनियंस रहते हैं और जब संदीप रेड्डी वंगा की आती है तो एक शब्द जो बार बार इस्तेमाल किया जाता है मिसोजिनी. सो बीइंग अ वुमन, व्हाट डू यू थिंक ऑफ संदीप रेड्डी वंगा? यार देव कॉल प्यार का पंचनामा ऑल्सो मिसोजिनिस्ट. तो इस शब्द से तो मैं बहुत सालों से वाकिफ हूँ. इस शब्द का सवाल मुझे बहुत सालों से पूछा जा रहा है. मेरा जवाब तब भी वही था, मेरा जवाब आज भी वही है कि अगर प्यार का पंचनामा हिट हो सकती है और इतने करोड़ कमा सकती है और एनिमल 600 करोड़ कमा सकती है तो ये सवाल मुझसे नहीं, हमें ऑडियंस से पूछना चाहिए कि उनको क्या लगा. और अगर उन्होंने इतनी बार आके 600 करोड़ दिए पिक्चर को तो उनको कुछ तो पसंद आया होगा. एंड ऑब्वियसली दादा साहब फाल्के इज द लेगेसी ऑफ इंडियन सिनेमा. लेकिन एक नाम और है जो शायद उन्होंने दादा साहब फाल्के से पहले चालू किया था, हीरालाल सेन जी. तो
आज ऑब्वियसली दादा साहब फाल्के साहब का राइटफुली इतना सम्मान है, लेकिन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि जब हीरा लाल सेन जी की उनकी बात इतनी नहीं होती है, उनके नाम पे इतने कोई प्रसिद्ध अवार्ड सुनने नहीं मिलते हैं? अगर आपने सवाल उठाई है तो मैं तो कह रही हूँ कर लो, स्टार्ट कर लो। आप बताओ लोगों को कि वो भी थे और उनके के नाम पे एक अवार्ड होना चाहिए, सर्टिफिकेशन होनी चाहिए उनके नाम पे। चाहो तो क्रिटिकल ये हो सकते हैं, अगर ये दादा साहब फाल्के है तो उनके नाम पे क्रिटिकल अप्रिसिएशन हो सकते हैं, जैसे हम सब अवार्ड्स में करते हैं, पॉपुलर होता है, क्रिटिक्स होता है, तो हम वैसे कर सकते हैं। दैट वे एवरीबडी गेट्स अ लिटिल बिट ऑफ एवरीथिंग। सॉरी, नाउ यू कैन जवाब तो कंप्लीट करने दो। नुसरत मैम, राम मंदिर बन गया है, आप कितनी खुश हैं? इतने सारे सेलिब्रिटीज राम अयोध्या गए थे, जी, जी। तो आप कितने खुश हैं? आप क्या कहेंगे? I think the fact that it's such a big moment for the whole country to celebrate. हम सब ने देखा है कि उस दिन क्या इमोशन था सबके पास, सबकी तरफ। जब भी हम फ़ोन खोलते, जब भी एक दूसरे से बात करते, मैं बॉम्बे में नहीं थी, बट जहाँ मैं थी वहाँ टीवी पे हम पूरा वो लॉन्च देख रहे थे। एंड इट वाज आई थिंक एक इमोशन ना पूरे देश को जो कनेक्ट करता है, वो उस दिन एक्चुअली महसूस हुआ। सो इट्स अ वेरी बिग मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस एंड आई होप वी कंटिन्यू टू सेलिब्रेट इट एज वेल। आप कब जाना चाहोगे अयोध्या? अरे मैं एक्चुअली जाके आई हूँ। राम सेतु का मुहूर्त शॉट जब अयोध्या पूरी तरह बना नहीं था, इट वाज स्टिल इन द प्रोसेस, हमने वहाँ जाके मुहूर्त शॉट किया था, पूजा की थी। आई वाज वेरी फॉर्चुनेट एंड वेरी लकी कि हमें उस फिल्म के थ्रू मुझे मौका मिला वहाँ जाने का। तो मैंने एक्चुअली वहाँ अंडर कंस्ट्रक्शन चीज़ें देखी थी, तो आई एम वेरी हैप्पी दैट आई वेंट देयर, बट आई वांट टू गो इवन नाउ। तो आई होप, मैं बता रही हूँ, ये जो एक इमोशन होता है ना, इसका बुलावा आता है। आप कहते हैं ना, भगवान का बुलावा जब आता है तो आप पहुंच जाते हो, तो जब भी आएगा मैं पहुंच जाऊँगी। थैंक यू, थैंक यू सो मच। थैंक यू। एक तो बहुत अच्छी बात है कि दादा साहब फाल्के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल के दौरान हम लोग सब यहाँ आए और हमारी पिछली जो फिल्म जो रिलीज होने वाली है C5 में, उसके एडवर्टाइजमेंट्स आए, हमारे लिए बहुत अच्छा मौका है एंड वेरी हैप्पी दैट जेडी सर, अवार्ड के साथ हमेशा एक क्रेडिबिलिटी का जुड़ना बहुत बड़ी बात होती है। आप देखते हैं साल में बहुत सारे अवार्ड कई कई जगह होते हैं, तो जब दादा साहेब फाल्के अवार्ड आता है तो आपके मन में उसकी एक स्टैंप लग जाता है, वेरी क्वालिटेटिव, वेल डिजर्विंग अवार्ड। जिसको भी मिलता है उसकी ज़िंदगी में, बाकी कोई भी बहुत सारे अवार्ड होते हैं, पर एक दादा साहेब फाल्के आ जाता है तो आपके हाथ में ऑस्कर से भी ज़्यादा एक गर्व की बात आ जाती है हिंदुस्तानी के लिए कि भाई दादा साहेब फाल्के, जिनके साथ हमारी सिनेमा का, हमारे मनोरंजन की दुनिया का एक ऐसा दौर जुड़ा है जो कि शुरुआती दौर था। तो वन ऑफ द मोस्ट रिस्पेक्टेबल अवार्ड इंडिया का कहा जाए, ऑलमोस्ट मैं तो नेशनल अवार्ड, ये आप ये तय नहीं कर पाओगे कौन सा ज़्यादा रेप्यूटेड और कौन सा ज़्यादा पहले से शुरू है। तो इट्स वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड अवार्ड और इसकी खुशी बहुत होती है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। सर, खिचड़ी जरूर, खिचड़ी 2 इतने सालों से लोगों का मनोरंजन करते आई है और खास करके छोटे पर्दे पर तो बहुत ही किया है। अभी हमको 2-3 ऐसे जर्नलिस्ट मिले हैं, रिपोर्टर मिले, जिन्होंने हमको कहा कि हम सर एक फ़ोटो लेना चाहते हैं। उन्होंने कहा कि थैंक यू हमारा बचपन सुधारने के लिए। तो ये जो कमेंट हमको मिलती है, कॉम्प्लीमेंट मिलती है, इतने सालों से मिलती है, तो हमको बड़ा अच्छा लगता है कि खिचड़ी जो एक ब्रांड है, लोगों के घरों में सालों से एकदम अपनापन जता के रही है। तो जब टीवी पे और स्पेशली जब OTT जैसा Z5, वो बहुत सारे लोग जो इतना इंतज़ार करके बैठे हैं देखने के लिए, उनको ये देखने का, साथ मिलकर हंसने का मौका। हम हमेशा मानते हैं कि फैमिली कंटेंट ऐसी होनी चाहिए जब पूरा परिवार साथ बैठ के देखे, साथ मिलकर एंजॉय करें। तो Z5 पे लोगों को ये मौका मिलेगा एंड दैट इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर। हम खुद उसका इंतज़ार कर रहे हैं और Z5 जैसे सक्षम प्लेटफॉर्म पे आ रहा है तो बड़ा मजा आएगा। थैंक यू। मिशन पान तुर्किस्तान, वही अपने आप में बयां करता है कि वो एक ऐसा मिशन है। और जब पान तुर्किस्तान की बात करते हो तो ऐसी कंट्री, ऐसे देश की बात होती है कि क्या है, फनी लगता है। और जैसे जैसे आपने उसके प्रोमो ट्रेलर देखा होगा तो एक ऐसी कंट्री हम दिखा रहे हैं कि जहाँ पे हमारे जो प्रफुल्ल है, उनके लुक अलाइक वहाँ के राजा है जो कि बहुत ही क्रूर है,
अपनी प्रजा पे बहुत ही जुल्म ढाते हैं और वो पूरी दुनिया के लिए एक बड़ा खतरा है। तो ये पारेख परिवार प्रफुल्ल के जरिए उस राजा को रिप्लेस करके पूरे दुनिया को बचाने का मिशन हाथ में लेते हैं। आप सोच सकते हैं जब प्रफुल्ल और पारेख परिवार ऐसा कोई मिशन हाथ में लेंगे तो वो मिशन किस हद तक जा सकता है, किस हद तक सक्सेसफुल हो सकता है और उसमें क्या उटपटांग चीज़ें होके कितना ह्यूमर, कॉमेडी और मनोरंजन आ सकता है। तो ये सब प्योर फन फिल्म एडवेंचर कॉमेडी है। मिशन 5 पाकिस्तान पे जाने की जर्नी और वहाँ का पूरा जो एक प्रोसेस है बड़ा मज़ेदार रहा है। अनन्या ठीक है, थैंक यू।